रोजगार सृजन, कचरा प्रबंधन और लोकल फॉर वोकल, इन तीनों का अद्भुत सम्मिश्रण है केरल की रहने वाली लक्ष्मी मेनन की कहानी, जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी के दम पर न सिर्फ सैकड़ों लोगों को स्वाभिमान से जीने का हौसला दिया, बल्कि दुनिया की गंभीर समस्याओं में से एक पर्यावरण संकट से निपटने का रास्ता भी दिखाया। ये है केरल के एर्नाकुलम इलाके में स्थित एक छोटी सी वर्कशॉप, जहां ये महिलाएं पूरी एकाग्रता के साथ कुछ उत्पाद बनाने में व्यस्त हैं। ये महिलाएं वो महिलाएं हैं जिन्होंने विषम हालात को चुनौती देते हुए आगे बढ़ा है। इनमें से कुछ की कहानी आपके आंखों में न सिर्फ आंसू ला देगी, बल्कि सोचने पर मजबूर भी कर देगी कि अगर उन्हें सहारा नहीं मिलता तो जाने क्या होता। लक्ष्मी मेनन जानी मानी इनोवेटर हैं, जिनका मानना है कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, और उन्होंने इस बात को साबित भी किया है। I always feel that there is nothing called waste. It's only the way you look at it. So anything that we cannot find a value in, we shamelessly regard it as waste. I think it's just that our human intellect is not crazy enough to come up with an utility for everything that we completely throw away as waste. If we can find utility in that, we can literally change the sustainability or the future of the world itself. We can create such a sustainable world if we can really come out with solutions where you can find a utility for the things that you normally regard as waste. कोविड-19 के गंभीर संकट से दुनिया जूझ रही है। पीपीई किट और मास्क का इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके निर्माण के दौरान कितना मेडिकल वेस्ट निकलता है? लक्ष्मी ने अपने शोध में पाया है कि केरल में 900 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में 900 से अधिक कोविड सेंटर हैं, जहां हर सेंटर में 50 बिस्तर लगे हैं, जो मरीज के स्वस्थ होने के बाद बदले जाते हैं, जिनकी कीमत 500 से 700 रुपए है। इस दौरान ऐसे में कुछ ऐसे प्रोडक्शन सेंटर भी थे जहां बड़े पैमाने पर पीपीई किट का मेडिकल वेस्ट इकट्ठा हो रहा था। उनके रिसर्च के अनुसार एक छोटे प्रोडक्शन हाउस से भी 6 टन से ज्यादा मेडिकल वेस्ट निकल रहा था। यही नहीं, कोरोना के कारण मजदूर तबके की महिलाओं के सामने रोजगार का बड़ा संकट था, और यहीं से उन्हें शैया बनाने की प्रेरणा मिली। Here we are doing a project using the tailoring scrap of PPE material which was used for making the mask and the gowns for the COVID care centers and patients and the health workers and literally everybody during those days. So what we do is we collect the tailoring scrap from the manufacturing units. So these are not used in hospitals or anything. These are the untouched bits and pieces that is made that comes out during making the mask and the gowns. So we collect that and we braid it and we make it into long ropes, and just by tying it together we convert it into a mattress, which was widely used in the first line treatment centers in COVID care centers. So this was through this we could actually upcycle a lot of the scrap and also provide employment for a lot of people who lost their jobs during the COVID days, and also provide a commodity at as cheap as rupees 300, which was so widely needed needed for the COVID care center. क्या आप जानते हैं रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले पेन से कितना प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है? इन्होंने कागज के मैजिक पेन को बनाया, जिसकी खासियत ये है कि इनमें बीज होता है। पेन को इस्तेमाल करने के बाद अगर आप फेंक भी दें तो वहाँ पौधे का जन्म होगा, जो बाद में हरा भरा पेड़ भी बन सकता है। ये कागज भी प्रिंटिंग प्रेस के रद्दी से उठाए जाते हैं। इनके उत्पादों के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश का नोट भी होता है, और इसके लिए बहुत से बुजुर्ग दिव्यांग लोग इनके प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, जिनकी आजीविका का माध्यम यही है। We came up with a pen that is made of paper to avoid the plastic. So the paper is waste paper that we collect from offices and schools and things like that. So we just place a refill. It could be plastic or metal. Just roll that paper, layers of it over that, and that becomes a very sturdy pen to write.
and we also added a seed on the back side. There's a tiny little space on the back. We added that, and so we have the habit of using and throwing things, right? So we thought when you throw it away, the paper, when it touches the ground, the paper will disintegrate and the seed will and the plant will sprout out of it. So that was one of the innovations that we had done. ये चेकुट्टी गुड़िया है, बहुत ही लोकप्रिय और आपने सुना भी जरूर होगा, जो मलयाली परिवारों का आज हिस्सा बन गई है। आपको याद होगा कुछ समय पहले केरल में बाढ़ आई थी। बुनकरों का गांव चेदमंगलम में टनों कपड़ा बर्बाद हो गया और जो कपड़ा बर्बाद हुआ उन्हीं कपड़ों से बनाया गया चेकुट्टी डॉल और आज ये केरल के हर घर का हिस्सा है। लक्ष्मी मेनन को इनके इन सराहनीय नवाचारी प्रयासों के लिए अब तक अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जहां समस्याएं हैं वहां समाधान भी है। कचरा प्रबंधन आज पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन लक्ष्मी मेनन जैसी कुछ ऐसी साहसी और इनोवेटिव महिलाएं भी हैं जिन्होंने अपनी कुशलता के दम पे कर दिखाया है, एक रास्ता दिखाया है कि कैसे कचरे की समस्या से निपटा जा सकता है, उसको कैसे यूजफुल बनाया जा सकता है। क्योंकि दुनिया में कचरा ऐसी कोई समस्या नहीं है, बशर्ते आप उसका उचित समाधान जानते हो। कोच्चि से मैं सिद्धार्थ, सनसद टीवी के लिए।